and we'll be studying definitely. So once again we are here with your unit number. uh, I don't know the exact number. It's acid, bases and salt. So last time जब हम बेटा discuss कर रहे थे, we have discussed about bases. We have done with acids and right now we are going to discuss with bases. उसके बारे में भी हमने briefly study किया था that what bases are and how they are going to be reacted, and we have also studied the different formulas for different alkalis like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, and so many as well. Okay. So after that, you all of you can please open your books page number. We have done with page number 85. Okay. All the boys, it's my humble request, please switch on your videos and mute your mics. If you need to ask any question, you need to raise your hand. Don't interrupt me while I am giving you the lecture. Fatma, I will take your question after some time. So it's on page number 85. We have studied that what are the properties of bases and alkalis. Alkalis, all the aqueous solution of alkalis have a soapy touch. ठीक है? इनको जो feeling आती है, that is of soap. Then we have studied that bases have the tendency that they turn red litmus into blue. Phenolphthalein indicator जो है उसको pink में convert कर देती हैं, and methyl orange is another indicator. It also converted into yellow one. ठीक है? Then we have studied that aqueous solution of bases are very good conductors of electricity, and we have also studied. I am sharing the page, that one page with you for those who don't have their books yet. So here is the page which I am going to discuss. मैं आपको अभी पिछला वाला repeat ही करवा रही हूँ. I am not going to tell you any new thing. So then we have studied a very famous reaction between acids and bases, which was neutralization reaction. चाहे आप उसको acid में discuss करें, चाहे आप उसको bases में discuss करें, you have to mention it. दोनों same हैं, बस फर्क ये है when you are going to discuss it under the heading of bases or alkalis, you are first going to write down base first and then acid. But when you are going to describe it in the form of acids under the heading of acid, you are going to write it down that acids react with base. Acid पहले आ जाएगा, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले है, तो चूंकि हम अल्कलीज की बात कर रहे हैं, that's why it's like that. But when we are going to discuss acids, then acids are on the first priority, right? कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करें या HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें, always the formation of product with the liberation of water is going to be the same. And this famous reaction is known as neutralization reaction. क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन होती है तो हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है जिसमें दोनों आयंस जो हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं. ठीक है? Then we have also performed an activity. उसको हमने चेक किया था कि क्या होता है, and we have also said that alkalis को जब हीट किया जाता है तो अमोनियम सॉल्ट जो है वो अमोनियम गैस प्रोड्यूस करते हैं. अमोनिया गैस इज रियली वेरी हैविंग पंजेंट ऑर्डर. बहुत बुरी इसकी स्मेल होती है, जिस तरह रॉटन एग नहीं होता, गंदे अंडे की तरह की स्मेल होती है. So by passing the lab, if this reaction is carried out, everyone get to know that ammonia gas or hydrogen sulfide gas is going to be reacted. Faisal, switch on your camera. Then there is another new page which we are going to discuss right now. Here it is. Hope you all can see it in a while. Achha ji. This is here. So in this page you can see a reaction on the top of the page number 86, which is calcium hydroxide. Calcium hydroxide जो है वो एक बेस है. जब उसको हमने अमोनियम क्लोराइड जिसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हम ये रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हैं, when we are going to heat it with that, तो क्या होगा? As a result, calcium chloride, 2 water molecules and ammonia gas is going to be produced. Now in the paper question can come that what is the smell, what is the odor of ammonia gas? Then the answer is pungent odor. Okay? Then there is, you can see that the reaction is carried out. You can see there is a burner and उसके ऊपर आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर में टेस्ट ट्यूब को लगाया हुआ है जिसके अंदर दोनों सॉल्ट्स को ऐड किया गया है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. And when they are going to be heated, ammonia gas is going to be produced.
ठीक है। अमोनिया इसके ऊपर बीकर या जार उल्टा करके इसलिए रखा हुआ है कि जो गैस है उसमें डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एवापोरेटेड एट वंस हाउ एज इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। सो उसको कलेक्ट किया जाता है उस जार के अंदर ताकि आपको उसकी स्मेल से उसके ऑर्डर से आइडिया हो दैट आइदर इट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड और नॉट, राइट। देन देयर इज नंबर 6 पॉइंट, अल्कलीज रिएक्ट विद फैट्स टू फॉर्म सोप। यानी डिफरेंट तरह के जो फैट्स हैं उनके साथ जब उनको रिएक्ट किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, देन दे विल बी एबल टू फॉर्म सोप। देयर इज एन एक्सपेरिमेंट इन क्लास 9 जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरीके से किन चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी फॉर्म सोप। लैब में सोप इजीली प्रिपेयर किया जाता है। फैसल, इफ यू वांट टू ले डाउन यू कैन गो आउट फ्रॉम द क्लास, इट्स नॉट द वे। व्हाई आर यू लेइंग डाउन? उठ के बैठे। इट्स नॉट द रिस्पेक्टेबल वे। आप लोग इतना थके हुए हैं कि आप क्लास लेट के एंजॉय कर रहे हैं तो बस टीचर बोले जा रही हैं। दिस इज रियली वेरी बैड फैसल। आई डोंट एक्सपेक्ट एटलीस्ट दिस काइंड, मतलब नॉन सीरियसनेस की इंतहा होती है। हैव यू पीपल एवर think when you will be in 9th class what will you do over there? These are the very very basics of chemistry. और आगे जब आप लोग जाओगे you people are totally blank. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कितनी मर्तबा हमने इस चीज में पढ़ा है लेकिन स्टिल 9th क्लास में जब जाओगे इस तरह से रिएक्ट करोगे जैसे न्यूट्रलाइजेशन तो सुना ही पहली दफा है हमने। आई डोंट नो कि आप लोग क्या करना चाहती हैं, बिल्कुल स्पॉइल करके रख देते हो अगले का मूड आप। Anyways, uses of bases and alkalis means non seriousness की इंतहा है। अब आप देखो बिलाल, tell me one thing बिलाल अतीक, what is the purpose of this emoji in front of your name? Are you Bilal? Yes, teacher. Why have you made these emoji? Is it a fun class? Is it any art class? Is it there any activity that is based on fun? This is the particular way. At least react like elder boys. You're not a kid of class 2 and 3. Believe me, if you have your little brother or sister, you can see वहाँ पे भी एक manners में, एक तमीज में चल रहा होता है सब कुछ। Off and on आप occasionally कभी visit कर लेते हैं क्लास को and you start doing all these rubbish stuff. That's the proper way. पता लगना चाहिए एक बड़े बच्चे की माशाल्लाह क्लास हो रही है, कोई लेटा हुआ है, मतलब what's nonsense it is. And if नुमान ज्वाइन कर ले तो उसके साथ आपके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो कि इतनी नॉन सीरियस क्लास क्यों है ये क्लास 8। सम कॉमन यूजेस ऑफ बेसिस आर, अब कुछ बेसिस हैं उनके नेम आगे लिखे हुए हैं और साथ में उनके यूजेस हैं। यू आर नॉट अलाउड टू मिक्स ऑल दीज यूजेस विद अदर वन। जैसे फर्स्ट वन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने आपको बताया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। It is used in manufacturing of soap, textile and plastic industry. Majorly जो हम use कर सकते हैं, we can use it in soap. Then there is petroleum refining, making rayon and the manufacture of paper pulp and medicines. Sodium hydroxide इन सब चीजों में widely use किया जाता है। Then there is another page number 87. You can move on there and you can see calcium hydroxide. Bilal, start reading of calcium hydroxide uses. Yes, teacher. ठीक है, start. Where is your book? Here. Please open it. Bilal, are you there or not? Yes, teacher. Calcium hydroxide. Calcium it's page 87. Yes. What is the formula of calcium hydroxide? Yes. Calcium hydroxide का क्या formula है? CaOH twice. ठीक है? CaSO4. हाँ, CaOH twice, ये पीछे लिखा हुआ है। जब आप चैप्टर याद करेंगे तो आपको मिल जाएगा। चले मूव ऑन। Calcium hydroxide is called
Slagged lime. It is used Slaked. in the manufacture of bleaching powder as a dressing material for acid burns. It in making lime sulfur sprays to be used as a fungicide, as a water softener for neutralizing acidity present in soil. ओके Ammonium ठीक है, oxide. ठीक है, ठीक है, बस यहाँ तक। स्विच ऑन योर वीडियो। अच्छा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। इट इज अ ऑफिशियल नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिकॉज जब आप कोई चीज बाहर परचेज करने जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू से दैट पर्सन कि आई नीड सोडियम हाइड्रोक्साइड, आई नीड सोडियम कार्बोनेट। यू विल सिंपली से, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, आप कहेंगे बेकिंग सोडा दे दें परचून की दुकान पर। यू आर नॉट गोइंग टू टेल हिम द फॉर्मूला दैट NaTuCO3 आई वांट इट। ठीक है। सिमिलरली स्लेक्ड लाइम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। For what purpose it is going to be used? It is basically used as a bleaching powder. ये जितनी भी bleach हमारे घर में use की जाती हैं for cleaning purposes, in toiletries as well. So उनमें जो major product होती है that is slaked lime. ठीक है, bleaching powder में इसको use किया जाता है. Then it is also used as a dressing material for acid burns. Dressing material क्या होता है? Dressing material वो material होता है जैसे कोई एसिड बर्न खुदा ना खास्ता किसी को अनफॉर्चुनेटली हो जाए, तो उसके ऊपर फौरन से आप अल्कली लगा देंगे ना, एसिड देखें गिर गया आपके ऊपर, व्हेन यू आर गोइंग टू प्लेस अल्कली ऑन दैट, तो क्या होगा कि वो रिएक्शन जो है वो बैलेंस आउट हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो जहम जो है आपका बैलेंस आउट हो जाता है। इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट इन दैट वे, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है। देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग लाइम सल्फर, जिसमें हमें थोड़ा सा कह लें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है। स्प्रेज टू बी यूज्ड एज फंगिसाइड्स। एनीबॉडी हैज आइडिया व्हाट इज फंगिसाइड? Teacher, can I try? Yes, Fatma, tell me what is fungicide? Teacher, fungus. It's like type of fungus. Yeah, it is a medicine used to remove for fungus. मतलब स्प्रे इसका बना लिया जाता है जहाँ पे भी फंगस का अटैक होता है, we just do it over there and it gets vanished within few seconds or few, मतलब that depends के how old it is. It is also used as a water softener for neutralizing acidity present in the soil. तो soil को fertile करने के लिए, तो उसकी pH इतनी कम ना हो जाए कि वहाँ पे acid इतने ज्यादा हों कि जो भी आप crop ऊपर प्रोड्यूस करना चाहो दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस, तो उस चीज को भी कम करने के लिए इट इज यूज्ड। देन देयर आर यूजेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Faisal, start reading. Yes, miss. Start Aluminium, reading. aluminium hydroxide. Read it carefully. Is it aluminium? Yes. Oh, sorry. Ammonium. Yeah, ammonium hydroxide. NH4OH. Yes. There is a very very big difference between aluminium and ammonium spelling as well. चलें पढ़ें। Ammonium hydroxide is used to remove grease from window panes, to remove ink spot from clothes as a reagent in laboratory. Reagent Reagent in laboratory for the treatment of bee stings. ठीक है। Ammonium hydroxide, basically formula of ammonium hydroxide is NH4OH. So it is used to remove grease from window panes. Window panes means window के जो जिसके ऊपर स्लाइड करती है विंडो, उसका जो बाहर का पेंदा होता है या कह लें जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टील होता है, उसके ऊपर से ग्रीस को रिमूव करने के काम आती है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लोथ्स एज वेल, जैसे कोई स्पॉट्स लग जाते हैं इंक के और वो बिल्कुल भी डिसअपीयर नहीं हो रहे होते, सो वो यूज्ड इट एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी। रिएजेंट मींस एनी सब्सटेंस, बहुत सी चीजों की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, जैसे हमने पीछे अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया रिएक्शन, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग, जैसे शहद की मक्खी काट जाती है, तो देन वी यूज to do the to apply the medicine which has ammonium hydroxide. कोई भी ऑइंटमेंट जो उधर स्पेसिफिकली अप्लाई की जाती है, उसके ऊपर अगर आप उसकी कंपोजिशन को रीड करें, देन देयर इज रिटन के इसके अंदर क्या है। जैसे किसी की कोई चीज मतलब हाथ जल गया है, कुछ ऐसा इशू हो गया है, देन वहां पर आप जो चीज अप्लाई करते हैं। अब्दुल रहमान, माइक को ऑफ करें अपने।
वहाँ जो बर्न्स बन जाते हैं उसको आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो। यू आर गोइंग टू पुट सम सल्फा डायाजीन, फॉर्मूला है जो कि उसको हेल्प आउट करता है। देन द लास्ट वन इज सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में फातिमा, आई जस्ट टेक क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू फिनिश इट एंड देन वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन, ऐसे फिर क्लास रह जाती है, ठीक है। देन सॉल्ट, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट बेटे प्रोड्यूस किए जाते हैं, तीसरी दफा बता रही हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। व्हेन एसिड एंड बेस इज गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसका जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज गोइंग टू बी अ सॉल्ट along with liberation of water. So you can see the highlighted definition that a salt is a compound formed by the neutralization of an acid with a base. A large variety of compounds exist as salts. There are so many salts कि आप लोगों ने शायद कभी इतने कंसीडर ही ना किए और सोचे भी ना हो जितने salts exist करते हैं। हमारे घर में, हमारे किचन में जो सबसे कॉमन सॉल्ट पाया जाता है वो है नमक। नमक को जो है उसका जनरल नेम है टेबल सॉल्ट, और इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, विच इज प्रेजेंट इन आवर किचन। व्हाइट कलर का जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। आपके पास जो पिक्चर है इसके सेंटर में ये व्हाइट कलर का जो सॉल्ट है, दिस इज NaCl। ये एडिबल है, एडिबल मींस खाया जा सकता है इसको। Those things, not every salt is edible. Some salts are really very dangerous कि आप उसको हैंड से पकड़ भी नहीं सकते। You need spatula or some specialized gloves and stuff like that to handle with that, ठीक है। So sodium chloride is a common salt which we use in our food. Some common salts and their formula are given in table and shown in figure. अब आप अगर इसके साइड पे ये जो रेड कलर का बना हुआ है इसमें देखें आयरन क्लोराइड, इट इज ऑफ ब्राउनिश रेड कलर। कोबाल्ट नाइट्रेट, इट इज ब्रिक रेड कलर, ईंटों का जो रंग होता है, इट्स लाइक दैट। निकल सल्फेट, इट्स ग्रीन कलर, ब्राइट ग्रीन कलर। ये कलर ही इन सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं by which we can simply identify कि ये कलर है, it is going to be definitely this salt. Then there is copper sulfate, ठीक है। कॉपर सल्फेट को हम जहर भी बोलते हैं, इट इज अ पॉइजन। जब इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे देन इट इज अ पॉइजन, लेकिन अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, विच इज नो मोर पॉइजन। उसका पानी जो है वो उड़ जाएगा उसमें से। नाउ देयर इज अ टेबल, ये सब ने याद करना है सारे का सारा। इट शुड बी ऑन इन योर फिंगर टिप्स। सोडियम क्लोराइड मैं एक दफा रीड कर रही हूँ, उसके बाद मैं बारी बारी आप सबसे रीड कराऊंगी। फैसल, अब्दुल रहमान, स्पेशली आप दोनों से, and Bilal if you are there, if you didn't left the class। देख लें बिलाल है ही नहीं वो। ओके, सो सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला है NaCl। Na जो है वो है सोडियम का सिंबल, क्लोराइड का सिंबल है Cl, राइट। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का सिंबल है K, इट्स नॉट P। पोटेशियम सिंबल इज K and chloride is Cl, KCl। Then we have third salt, ammonium chloride। आप दोनों ने किस खुशी में अपने कैमरा ऑफ किए, अब्दुल रहमान एंड फैसल? Ammonium chloride is NH4Cl। Then calcium chloride, CaCl2। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का सिंबल था Na, लेकिन कार्बोनेट के साथ जब इसने रिएक्ट करना है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म Na2CO3। Then sodium hydrogen carbonate, which is also known as sodium bicarbonate, NaHCO3. Then sodium nitrate, NaNO3. Potassium nitrate, KNO3. Ammonium nitrate, NH4NO3. Calcium sulfate, CaSO4. Calcium carbonate, CaCO3. Copper sulfate, CuSO4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are 12 formulas. All of you open your copies and registers, rough registers, and start writing the formula. Salt का नेम नहीं लिखना, just आगे आपने formula लिखना है। जल्दी से लिखना शुरू करें। Open your copies, all of the girls and boys. Cameras on करें। Girls, Iman, Umaima, and Fatima. बेटे, after writing, you just switch on your camera and show it to me. Hurry up. Open your rough registers. मेरे बुक से देख के लिखने हैं। बेटे एक मिनट। हाँ जी ईमान, देख के लिखने हैं। जी फासिल, क्या कह रहे हो? मिस पूरा टेबल उतारना है, आप कहीं मैं सॉल्ट नहीं आपको बता रही हूँ, आपने सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। मैं वर्ड बोलूंगी, यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन एंड रेज योर हैंड्स। सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला लिखें इसका देख के।
सोडियम, यू डोंट नीड टू राइट डाउन सोडियम क्लोराइड, जस्ट उसका फॉर्मूला लिखो। सोडियम का सिंबल है Na, N बड़ा आएगा, A छोटा आएगा, देन Cl, C कैपिटल, L स्मॉल। सबकी बहुत गलती होती है, L कैपिटल डालते हो। यस फातिमा बेटा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। वो जो आप जिसको ईमान कह रही थी वो मैंने पूछा था, क्वेश्चन के बुक से देख के लिखना है। चलें ठीक है, आई एम सॉरी जनाब, चलें लिखें, शाबाश। सोडियम क्लोराइड NaCl, बल्कि आप ऐसा करो साथ लिखो भी सोडियम क्लोराइड, ताकि आपको पता लगे किस चीज का फॉर्मूला है। डू इट, हरी अप, जल्दी जल्दी लिखें एंड देन शो इट टू मी। और ये आपका होमवर्क भी है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। ये सॉल्ट्स और फॉर्मूला आई विल टेक टेस्ट एंड देन आई विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेजेस। यहाँ तक कि आज मैंने आपको पढ़ाना है, फर्स्ट राइट इट डाउन जल्दी से। फैसल ये सारे लिखें, सोडियम क्लोराइड एंड देन राइट डाउन, एंड सेम विद पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑल द स्टफ, जल्दी से करें। जी No. फैसल, आर यू सेइंग एनीथिंग? नो टीचर। चलें शाबाश, जल्दी से लिखें, लिखते हुए नजर आए मुझे। मिस पेज गायब हो गया। यू डोंट हैव बुक? नो, मैं स्कूल वाले कह रहे थे कि बुक खत्म हो गई है। अरे भाई, कब स्कूल वालों से पूछा जाके? बस जिस मैं कर दिन देती हूँ आपने कहा था उसके अगले। ओके, मैं शेयर कर देती हूँ आपसे। टेक अ स्क्रीनशॉट फैसल, ताकि आपके पास कोई बहाना ना रहे कि मिस मेरे पास बुक नहीं थी। स्क्रीनशॉट इसका लो और इसको पास सेफ रखो, समझ आया? जल्दी से करें। जल्दी से बेटे लिखें। टीचर कर लिया। अब्दुल रहमान, शो मी। जरा भी कर रहे हैं। टीचर कर लिया मैंने। ओके ईमान, शो इट टू मी बेटा। ओके मिस। It means if one student has done, everybody can do it. No, Faisal, have you? Okay, Faisal, have you done? Have you taken the screenshots? Yes. Wait. Okay, मैं इसको फिर यहाँ से खत्म कर रही हूँ because I have to check. चलें जी, दिखाएं मुझे ईमान। सबसे पहले आप दिखाओ बेटे। NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। 4 थोड़ा सा नीचे करके लिखना है, NH4 का ना, नॉट ऑन द सेम लेवल। ठीक है, शाबाश, इसको याद भी करें। स्टार्ट लर्निंग इट ईमान। शो मी उमैमा। फैसल, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला गलत है उमैमा, चेक इट आउट। Na2CO3, इट्स नॉट Na।
NaCl, KCl, NH, एक मिनट मुझे जरा क्लियर दिखाएं, NH4Cl, CaCl2, Na2CO3 आएगा, ठीक है, KNO3, NH4, 4 जो है आपने बहुत ऊपर लिख दिया मैम, इट्स द 1 2 3 4 5th नंबर Na2, हाँ यही वाला Na2। टीचर आई हैव आल्सो डन। बेटे एक मिनट, ठीक है मामा, स्टार्ट लर्निंग। फातिमा आपने कहा है ना बेटे, यस। शो इट टू मी। यस मैंने भी कर लिया। शेयर करते जाएं इसको, दिखाते जाएं मुझे। मिस फातिमा मैं टीचर फातिमा थोड़ा सा इस देख तरफ, मैं पहले देख रही हूँ। NaCl, KCl, NH4Cl, CaCl2, Na2CO3, NH4, Na3, ठीक है शाबाश, स्टार्ट लर्निंग इट एज वेल। ओके। फैसल, ओ माय गॉड फैसल, लुक एट योर राइटिंग, ये क्या किया है? जरा Yes, मुझे ma'am. दिखाएं, क्लियर पिक्चर दिखाएं, आई कांट सी इट प्रॉपर्ली। मिस क्लियर ही है। फैसल इतनी गंदी राइटिंग, ये एच मैंने आपको कहा है आप लोगों ने केयरफुल रहना है, कौन सी चीज बड़ी है छोटी है। 6 नंबर पे देखो, Na8CO3, एच जो है आपने छोटा लिखा है, इसको बड़ा लिखना है। मिस अभी मैं इसको नीट पे करूंगा अभी। नीट पे करते रहना, ये ना करना कि काम ठीक से कर लें हम। बहुत गंदी राइटिंग है। शो मी अब्दुल रहमान, स्टार्ट लर्निंग। फैसल मैंने अभी सुनना है। अब्दुल रहमान हैव यू डन? Abdul Rahman, show me better. It's not clear. Picture is very blurred. Make it clear. Abdul Rahman, your camera is stuck. I think your net issue is over there. Yes, Abdul Rahman. Not. हाँ जी अब्दुल रहमान, आई कांट सी। अच्छा जी बच्चों, ऐसा है कि यू हैव टू लर्न दिस टेबल बाय हार्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट क्लास। आई एम जस्ट गोइंग टू first take the test of this table and then we are moving further. ठीक है? So yes Faisal, what is the question? Ask me, hurry up. जी फातिमा क्या बोल रहे हो? टीचर मैं कह रही हूँ रिटन टेस्ट लेंगी कि ओरल? रिटन टेस्ट, फॉर्मूलाज का कोई भी ऐसा इशू नहीं कि उसमें सुने। और टीचर एक और बात पूछनी थी, पेज नंबर 87 पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 4th पॉइंट, वाटर सॉफ्टनर क्या होते हैं? बेटे वाटर सॉफ्टनर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, उसमें इसको ऐड किया जाता है। हार्ड वाटर जो है बेसिकली वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इट कंटेन सो मेनी अदर मिनरल्स जो हमारे, जैसे लेट्स से इफ वी टेक शावर विद दैट वाटर तो हमारे बाल खराब हो जाते हैं। रावलपिंडी का पानी इस तरह का है, समझ लें, दैट इज हार्ड वाटर, जिसे खारा पानी नहीं कहते आप लोग उर्दू में, दैट इज। तो वाटर को अच्छा बनाने के लिए, यूज सेफर यूज के लिए कि वो ज्यादा डिजीजेस क्रिएट ना करे, वी ऐड सम you can say we add some kind of ions in that, तो उसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करते हैं वाटर की क्वालिटी को बेटर करने के लिए। ठीक है, so till then बेटे अल्लाह हाफिज, my light has gone at once। जी जी जल्दी से पूछे, मेरी लाइट चली गई है। कहां से लूं? मिस्टर बुक कहां से लूं? वैसे just keep quiet,
When someone is asking the question, मिस आपने पहले मुझसे पूछा था। हाँ जी आप बताएं फैसल। मिस मैं कह रहा हूँ कि मैं बुक का